Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to Zahara Hall. I'm Twinkle, your host for the day. I hope you are having a meaningful and insightful day here at 5th MHM Summit India 2025. This hall will be hosting some deeply impactful discussions on education, health, and menstrual well-being, led by experts who have been working at the grassroots levels across India. Thank you for being here. Your energy and your commitment for building stronger menstrual health ecosystems across India is commendable. Let's begin. If you are settling in, I would request everybody to keep their phones on silent because we will be having the panel discussion. All right, everyone. We are beginning with the session that needs sheds light on one of the most crucial pillars of the menstrual education hygiene management. Education. How do we reach schools? How do we empower communities? How do we build awareness that sustains beyond one workshop or one intervention? We have an incredible set of speakers here who have done extraordinary work in this space. I would request everybody to please join in, clap, and welcome our panel today for the discussion. I would like to lead this conversation, I am honored to welcome our panel head, Ms. Geeta Solanki, founder of Unipads India Private Limited, a Bharat Ki Lakshmi awardee, a social entrepreneur, and a passionate woman about health, hygiene, and social development. A leader committed to menstrual equity and accessibility. Ladies and gentlemen, please join your hands together and welcome Ms. Geeta Solanki. Joining the panel, we have Dr. Pratibha Singh, Wash and Climate Resilience Specialist at UNICEF India, Mr. Neeraj Gera, Founder Chairman of Humanify Foundation, and Mr. Tarun Kumar, Founder of Nishchay Foundation, Jharkhand. Mr. Sandy Khanda, Founder of Green Pencil Foundation. Guys, please give a big round of applause to our speakers and to our moderator. Let's begin the session, I guess. Yeah. So, Ms. Nisha Jaiswal, President, Sudisha Foundation. Mr. Neeraj Gera, Founder, Chairman, Humanify Foundation. Mr. Tarun Kumar, Founder, Nishchay Foundation. And Mr. Sandy Khanda, Founder, Green Pencil Foundation. Guys, can we have a big round of applause for them? Ms. Geeta, over to you for the panel. Thank you so much for the amazing introduction. Without wasting any further time, I know we all are running short of time. I think we should just begin the session. And I would request even the panelists and the speakers here to cooperate and respect the time. So, yes, now, first of all, good afternoon, everyone. It's an honor actually to lead the panel because initially last 4 years I have been like all the 4 summits I've been the speaker, and this time I think they thought thoda sa promotion kar dete hain. So I'm going to lead the panel today, and so honored to lead this panel of 5th MHM Summit on the subject that is not only professionally very close to us, but also very, deeply personal for each one of us here on the panel, which is intervention strategies on MHM in education in schools and communities both. So my journey started by witnessing shame, shame, misinformation, and stigma around menstruation in the rural India. And it just inspired me to kind of, promote sustainable products, promote advocacy, and also agency for the girls in rural India. And that's what, gave birth to Unipads. Through Unipads, in last 8 years, we have reached and touched the lives of and impacted the lives of 4 million women and girls across the globe. And something that is very, very close to my heart. And today, in this panel, we are going to hear some very, deep work, impactful work done by amazing people, amazing organizations who have made very positive, impact in this society at the grassroots. So please let me introduce our panel.
Mr. Neeraj Gera, founder chairman Humanify Foundation, a national advocate using storytelling, emotional well-being, and one of my favorite, which is photography, to normalize menstruation. And I'm sure most of you have, even if you don't know whose photographs they were, but you have used those photographs on your slides, which are actually been clicked by him. Yeah, Mr. Tarun Kumar, Nischay Foundation founder. He's also known as Padman of Jharkhand, bringing powerful grassroots models like pad banks and youth-led campaigns. Mr. Sandy Khanda, founder Green Pencil Foundation, representing the youth-led climate action, sustainability, and school engagement. And we also have Ms. Nisha Jaiswal, President Sudisha Foundation, a powerful grassroots educator who has conducted 500 plus MHM awareness session across government and private schools in MP and UP, breaking stigma and empowering thousands of girls. Yeah, so please have a round of applause for all of them. And the panel flow I would suggest is just giving small introduction about you and your work for say 4 minutes or so, and then probably I have a few questions for each of them, and I also really want to engage even the audience here to ask their queries to all of us. Yeah, I'll call upon Ms. Nisha Jaiswal to talk about her work at Sudisha Foundation. So, hello everyone. First of all, thanks Geeta ma'am. And I am Nisha, come from the land of White Tiger in the Vindhya Kshetra of MP, that is Madhya Pradesh. And this is a land we also denoted that we are White Tiger from that land. So Sudisha is here and we introduce Sudisha. Sudisha का मतलब ही होता है नई दिशा की ओर. तो हमारा वर्क हमने यहाँ से शुरू किया कि क्यों ना हम कोई नई दिशा की ओर वर्क करें, क्योंकि जो भी फील्ड पे वर्क हो रहा था हम MHM से रिलेटेड वर्क इसके पहले अपने एरिया में कभी नहीं देखे थे कि कोई वर्कशॉप कंडक्ट किया है, कोई इसके बारे में बात किया हो. तो हमने MHM का एक वर्कशॉप, नॉर्मल वर्कशॉप नहीं डिज़ाइन किया, हमने उसमें वर्कशॉप में योगा, डाइट, कुछ ऐसे इंटरेक्टिव सेशन ऐड ऑन किए जिससे हम गर्ल्स से इंगेजमेंट कर पाएँ. एक्चुअली कई बार होता है लोग नॉलेज सेशन देने आते तो है लेकिन इंटरेक्शन नहीं हो पाता है. स्पेशली हम लोग के एरिया में ये बहुत फेस करने को चैलेंज हो रहा था कि लोग कनेक्ट नहीं हो रहे थे. जैसे ही हम पीरियड्स के बारे में बात करना शुरू करते थे ना, सबके सर नीचे होते. यूजुअली ऐसा ही होता है. आप किसी भी फील्ड पे, किसी भी एरिया पे जाओगे, ग्राउंड रूट पे जाओगे, गांव के क्षेत्र में जाओगे तो पीरियड्स मीन्स सर नीचे. मेरे लिए आज भी वैसा ही है क्योंकि मैं उस जगह से हूँ जहाँ पे लोग पीरियड्स के बारे में बात करना नहीं पसंद कर रहे हैं. मुझे आज भी चैलेंज है, मुझे 5 साल हो चुके हैं. आज भी कई बार ऐसे गांव में जाने को मिलता है ना, तो गांव के लोग मुझे एक्सेप्ट क्या, मुझे आने तक का मौका नहीं देते हैं कि नहीं आप ऐसे सेशन नहीं लो. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था. हमने फिर एक वर्कशॉप जो डिज़ाइन की वो उन्हीं के बेसिस पे, उसी कम्युनिटी के देखते हुए एक डिज़ाइन किया कि क्या ऐसा चीज़ इसमें इंक्लूड किया जाए जिससे इन लोग का इंटरेक्शन हम लोग से बढ़े. फिर हमने उसमें आपको बिलीव नहीं होगा, उसमें गेम सेशन भी इंक्लूड किया कि बच्चे इंटरेक्ट हो, हमसे बात करें. तो हमारी जर्नी बताने के लिए मैं टाइम नहीं लूँगी मैम से, मैं कुछ देर बाद बताऊंगी जब मैम Q&A को सेशन लेंगी, क्योंकि मैम बार बार हमें ही देख रही हैं. सो हमारे कुछ आई एम द लास्ट वन मैम. सो कुछ ऑब्जेक्टिव है हमारे इस वर्कशॉप के. जैसे मैंने बताया कि वर्कशॉप सिर्फ MHM नहीं है, हमने कुछ इंक्लूड किया है. ये सारे की ऑब्जेक्टिव हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. हमारे कुछ इम्पैक्ट हैं. मैं बहुत ज़्यादा बात MHM की नहीं करूँगी, मैं अपने इम्पैक्ट के बारे में बात करूँगी. आप लोगों ने इथोपिया ऑफ इंडिया तो सुना होगा, इथोपिया ऑफ MP भी है जो कि शिवपुर को कहा जाता है. हमने वहाँ पे पिछले 3 सालों से वर्क किया है और उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा है ना. अच्छा, हम लोग ना एक बार वर्कशॉप कर लेते हैं तो दोबारा वहाँ शायद जाते नहीं हैं, बट हम लोग सर्वे भी करते हैं हर ईयर. जहाँ भी हमारी मेंस्ट्रुअल हाइजीन की वर्कशॉप ली गई है वहाँ
सर्वेयर जाते हैं, सर्वे करते हैं कि एक्चुअली में चेंज हुआ है कि नहीं, और यदि उसमें थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि हमको फिर से वही मेंस्ट्रुअल हाइजीन कंडक्ट करानी है तो हम फिर वही कराते हैं. सो ये कुछ इम्पैक्ट है, जैसे महोबा हो गया, यूपी में है, पन्ना हो गया, शिवपुर, चित्रकूट, ये बहुत बिछड़े एरिया हैं. आप कभी सर्च करोगे ना तो बांदा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आप लोग एक यूपी का कांड सुने थे जहाँ पे दिन दहाड़े उसको गोली मार दी गई थी. बांदा वही जगह है. एक्चुअली आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी. जब मैं बांदा गई थी यूपी में, तो जब गवर्नमेंट स्कूल में हमने परमिशन मांगने गए कि हमको एक कंडक्ट करानी है वर्कशॉप, तो उन्होंने सीधे से बोला नहीं, आप नहीं कराओ क्योंकि ये सेफ प्लेस नहीं है. मतलब सेफ प्लेस क्या, सेफ प्लेस तो हम खुद क्रिएट करेंगे. हम लोग खुद ऐसा जगह से आ रहे हैं जहाँ पे सेफ इन्वायरमेंट हम खुद नहीं क्रिएट करेंगे तो कैसे. लेकिन प्रिंसिपल सर को मैंने इतना कन्विंस किया, उसके बाद वो वर्कशॉप कंडक्ट किया, और पिछले 3 साल से बांदा हम हर साल जा रहे हैं और वहाँ पे ये वर्कशॉप कंटिन्यू कंडक्ट करा रहे हैं. सो नेक्स्ट कुछ हमारे नेक्स्ट स्टेप्स हैं, जैसे कि अभी हमने 20,000 गर्ल्स को रीच आउट किया है और ओवल MP एंड UP. वी आर ऑल्सो विल डू कि हम इसको लैक्स में कन्वर्ट करें इन 3 और 4 ईयर. और हमारे कुछ, जैसे कि हम कुछ कम्युनिटी में वर्क कर रहे हैं स्पेसिफिक MP और UP, जैसे कि बैगा कम्युनिटी आप लोगों ने सुना होगा, सरैया कम्युनिटी. हम लोग कम्युनिटी इसलिए फोकस्ड हैं क्योंकि ये ऐसी कम्युनिटी हैं जहाँ पीरियड्स को यदि बता दिया जाए, यदि लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस, हाइजीनिक प्रैक्टिस पे आ जाएंगे ना, तो बहुत सारा डेवलपमेंट ऑलरेडी हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है. क्योंकि प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में फिर भी लोग पहुँच पा रहे हैं, हमारा आउटरीच कम्युनिटी ही है. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अच्छा, आप देख सकते हैं ये पैड है, ये बांदा का ही फोटो है. जब हमने उनको इंट्रोड्यूस किया था पैड, तो कैसे टच करके देख रहे थे कि कुछ ऐसा है जिसे टच नहीं करना है. और ये कुछ क्लासेस की फोटोज़ हैं, जैसे हम ब्लैक बोर्ड में पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चार्ट बना के समझाते हैं. और हाँ, हम उस पर योगा भी ऐड ऑन किया है, वो लास्ट फोटो योगा की है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. कुछ हमारे अपकमिंग्स गोल एंड फोकस हैं. ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगी, ये बहुत बड़ा चार्ट दिख रहा है मुझे. मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी कि हम जो रीवा स्पेसिफिक वर्क करने वाले हैं 2027 तक, इसको हम पीरियड फ्रेंडली डिवीज़न अनाउंसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. और एक चीज़ और है कि हम लोग ऐसी एक वैन बनाना चाह रहे हैं, रीवा नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया पे चलाना चाह रहे हैं, जो कि पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम की अवेयरनेस पे वर्क करे. हम बार मैं बोल रही हूँ रीवा, तो आप लोग भी थोड़ा वैसे देख रहे हैं, रीवा से ही सब करना है क्या. तो हम लोग इंडिया जेनरिक भी हैं, हम लोग इंडिया पे ऑल ओवर वैन का प्लान कर रहे हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. नेक्स्ट, ये कुछ फोटोज़ हैं जिसमें हमने बच्चों को इंटरेक्शन किया है, बच्चों को पैड इंट्रोड्यूस किया है. मे बी आप लोग को लग रहा होगा कि ये रीयूजेबल क्लॉथ इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया इन्होंने. तो मैं सच बताऊं, ये हम लोग के लिए भी चैलेंज है क्योंकि एक्सेसिबिलिटी नहीं है मार्केट में रीयूजेबल क्लॉथ की. तो ये मेरी आप सबसे भी अपील भी है कि यदि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यहाँ पे, तो हमारे प्लीज़ MP में भी आप ये सारी चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी करें. और ये सब पैड हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल पैड हैं. और मुझे भी ये चैलेंज होता है. हम सब हमेशा बोलते हैं कि हम लोग 21st सेंचुरी में आ रहे हैं, बट सच में अभी कप्स नहीं इंट्रोड्यूस किए गए हैं हम लोग के सिटीज़ में, या हम लोग के सिटी में अभी अवेलेबल नहीं हैं. सो दिस इज़ माई जर्नी, आई विल कंटिन्यू एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. निशा जी, आपका जर्नी सुन के बहुत ही अच्छा लगा और वी रियली आर इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड. मिस्टर नीरज, द माइक इज ओवर टू यू. We have a small presentation from you. I guess somebody can play the presentation if it is there. So meanwhile, I can speak. Yeah. So good afternoon, everyone. My name is Neeraj Kera, and I am the founder chairman of Humanify Foundation. So first of all, thank you so much, Gramale team. Thank you so much, Geeta Solanki ji, for introducing me. Thank you so much, Gramale team, for having this beautiful and very powerful platform, because this platform energizes each one of us every year to work more, to work on the destigmatization of periods, MHM practices, and so on. Thank you so much. So as
Humanify Foundation. It'll be easy for me, na? So as she has already introduced, I'm a photographer as well. I'm a social documentary photographer. I believe that, one photograph can speak much more than 10,000 or 1 lakh words. So maybe since we have just 5 minutes, I would not explain each and every photograph. So this is me. I hope I'm looking good. Next one. Sacred Sin. So I did a photo series. I was not an activist. I was not a social activist working on this cause. But when I realized, when I got some facts, shocking facts, then I thought I should speak about this cause through my photographs, which I shared. So this is the first photograph, Frightful First. It shows a fact. 71% of the females, when they bleed for the first time, they are not aware what periods are. Next one, please. Silenced by society. We have been silenced by society, males and females both, to speak about this cause. Till date, in India, people are using ash. People are using unhygienic cloth. People are using leaves. People are using newspapers to take care of their menstrual needs. Next one, please. And because of that, various diseases are there. I must tell you, if I talk about cervical cancer, India has got highest number of cervical cancer cases. 60,000 deaths every year in India because of cervical cancer. We do not talk about reproductive health. Next one, please. Period shaming. When people are laughing on it. They don't. Maybe next one, please. People are not aware what a girl goes through during those periods. A girl, I don't know whether you have this data or not, इतना दर्द होता है उस लड़की को कई बार जितना हार्ट अटैक में किसी व्यक्ति को होता है, ये एक रिसर्च कहती है. नेक्स्ट प्लीज. देयर आर वेरियस मिथ्स. इसको हाथ नहीं लगाना, उसको हाथ नहीं लगाना, मंदिर नहीं जाना, हमें प्लांट्स को हाथ नहीं लगाना, हमें घर से बाहर रहना है. टिल डेट 2025 वी आर लिविंग इन दिस सेंचुरी एंड हाँ, बट वी सेलिब्रेट इट एज वेल. स्माइल आ गई ना सबके चेहरे पे. वी सेलिब्रेट half sari ceremony. It's called half sari ceremony. In South India, we celebrate. But next month, she's told to stay away from even events. तो ऐसा नहीं है कि हमें कई बार लगता है कि they are very liberal. They are liberal, but उनको भी दूर रहने के लिए कहा जाता है. अभी आपने देखा साउथ इंडिया में क्या होता है. But it is such a celebrative thing. It's such a beautiful thing. It is because of this blood that this world exists. Next one, please. So this series was being published in BBC, Statesman, India Times, and various newspapers. Next one, please. End of the series, but we are continuing the. So it made me social activist, a menstrual activist. We started Period Revolution. We did a kind of change.org, free sanitary pad for menstrual cups, which received 224,000 supporters and various other things. We met various government ministers, PMO as well. Next one, please. And we have done 460 Happiness Express session in 24 states, and more than 160,000 students, community members have been touched directly, which is a world record. Next one, please. So, intervention strategies for MHM education, core intervention strategy, मुझे जो लगता है, sir, next. Educating the educators. After going to more than 400 schools, I have realized even the educators are not that educated. Even the educators are not very comfortable about this topic, talking about this topic. I have been stopped many a times by educators that please, you are a male, do not speak about this topic. Next one, please. Co-educational learning. In my session, I make sure that males and female students, male and females are sitting together and getting the education. Because if you want to change the world, 50% of the population have to, that other 50% population should also be the part of it. Next one, please. Clean and menstrual friendly toilets. So ये भी हमें schools में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर available नहीं होगा तो लड़कियों का absenteeism बहुत ज़्यादा हो जाएगा. Next one, please. Curriculum integration, government monitoring. हमारे curriculum में भी आपको पता है 7th 8th में जाके आता है, जबकि girls nowadays they start bleeding when they are in 5th 6th class. Next. पार्टनरशिप विद NGOs, वॉलंटियर नेटवर्क्स, ये हमें करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट प्लीज. लिंकिंग मेंटल हेल्थ एंड MHM.
I work on mental health as well. My sessions are based Happiness Express. अगर आपने नाम सुना होगा, it is not very MHM friendly name, because we talk about mental health as well. Because I believe if girls are mentally, kind of more better, then they can work on their menstrual health as well in a better way. Community engagement beyond schools. Next please. Policy and advocacy level intervention. मेरा टाइम खत्म हो चुका है इसलिए मैं कम बता रहा हूँ. वो निशा जी मेरी तरफ देख रही हैं वो. So a menstruation friendly India is where every girl smiles with dignity, every boy understands MHM with respect and sensitivity. And thank you. So I really urge all of you. It's a very crucial topic. It's a very, being a male, I feel for this cause. मुझे लगता है कि नहीं, सबको खड़ा होना चाहिए, सबको बोलना चाहिए इसके बारे में. हम क्यों नहीं बोल रहे, जितने लेवल पे हमें बोलना चाहिए. So please, let's get reunited. Let's get, become ally, become, associations, do associations to manifold the impact of MHM drives. Thank you so much. Thank you so much, Neeraj ji. It was a wonderful presentation, and thank you so much for sticking to the time. Okay, I'll call Mr. Tarun Kumar to talk about his work from Nischay Foundation. आप सभी को नमस्कार. मैं झारखंड से हूँ. झारखंड एक ट्राइबल स्टेट्स के नाम से जाना जाता है. ट्राइबल स्टेट्स मतलब वहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशंस जंगलों में रहती है, अंडर डेवलप्ड इलाकों में रहती है. एजुकेशन और बेसिक सर्विसेज की वहाँ पर प्रॉब्लम है. वहाँ पर हम लोग रिमोट विलेजेस में हम लोगों ने कोशिश की कि बच्चों को एजुकेट किया जाए, चाइल्ड मैरिजेस से बच्चियों को बचाया जाए. तो उससे लर्निंग हम लोग की रहे कि स्कूल जाने वाली बच्चियों को हम लोग जो वायलेंसेस के शिकार होते हैं, स्कूलों में MHM के क्लासेस चैप्टर्स में पता नहीं कितने सालों से हैं, लेकिन उनको स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता है. तो इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग यूज करते हुए हम लोग बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर काम कर सके. तो हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को जेंडर सेंसिटाइजेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हुए 7-8 अलग अलग हम लोगों ने अभियान चलाया हुआ है. निश्चय फाउंडेशन झारखंड से है. तो हम लोग चाइल्ड राइट्स पर काम करते हुए हम लोग एजुकेशन, मेंस्ट्रुअल हेल्थ, जेंडर इक्वलिटी, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज और बच्चों से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उसको हम लोग टच करते हैं. तो एक अम्ब्रेला के तौर पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जेंडर और बच्चों से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, हम लोग पिछले 10-12 सालों में 700-800 विलेजेस के में ट्रेवल किया. वहाँ पर बच्चों को हम लोगों ने एजुकेट किया इन सब चीज़ों पर. हम लोग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से काम करते हैं. उतना सपोर्ट हम लोग नहीं जुट पाता है हम लोगों के लिए, लेकिन पिछले 10-12 सालों में अब हमारे पास काफ़ी सारे बच्चों की फ़ौज है जो अब बड़े होकर के अपने गाँवों के लिए काम कर रहे हैं. तो हम लोग अंडर प्रिविलेज्ड इलाका, एक पुअर इलाका, वहाँ पर अब हमारे जो बच्चे हैं वो लोग अपने गाँव के लिए काम कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि आने वाले समय में काफ़ी अच्छा हो पाएगा. तो इस तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं. तो जब हम लोगों ने 10 साल पहले जब हम लोगों ने फाइंड किया था कि बच्चों को, लड़कियों के प्रति जो समाज की जो सोच है उसको बदलना ज़रूरी है, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर बात करके क्योंकि बच्चों के साथ जो वायलेंसेज होते हैं वो रिपोर्ट्स तक दर्ज नहीं होती है. बाल विवाह तक के इशूज रिपोर्ट नहीं होते हैं, उस पर एक्शंस नहीं होता है. तो जो वायलेंसेज है उस पर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन हम लोग अवेयर करके उनको बचा सकते हैं. तो हम लोगों ने शुरू किया था, बैक स्लाइड प्लीज. हाँ, तो 10 साल पहले हम लोगों ने जो प्रयास शुरू किया था, स्कूलों में पैड बैंक्स हम लोगों ने बनाना शुरू किया था. वेरी बेसिक वर्क. एक 20-25 रुपए का नैपकिन लड़कियों को कितना साहस दे सकता है, और किस तरीके से कम्युनिकेशन, एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन समुदाय में डेवलप कर सकता है. कि एक बच्ची जब जा कर के घर में अपने माँ को बोलती है, अपनी भाभी को बोलती है कि हमें स्कूल में सिखलाया गया है सैनिटरी पैड यूज करने के लिए,
गंदे कपड़े इस्तेमाल नहीं करना है, उससे सर्वाइकल कैंसर्स होता है। और भी जब बच्ची बोलती है कि हम लोग एनेमिक हैं, अच्छा पोषण हम लोगों को चाहिए, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए काफ़ी सारी चीज़ें, एक्टिविटी हम लोग लगभग पिछले 10 सालों में 5-6 हज़ार से ज़्यादा सेशंस हम लोग कंडक्ट करा चुके हैं। हमारी सक्सेस वही होती है कि बच्चों ने हमें पैडमैन का नाम दिया। कम्युनिटी में जब हम लोग जाते हैं, चौक चौराहा पर हम लोग सेशंस लेते हैं, अब हमें कोई नहीं बोलता कि ये मतलब कि छुपी हुई बात है, तो ये हम लोग सक्सेस मानते हैं। जब हम लोग जाते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं जाओ तुम्हारे भैया आ गए, बात करो, कुछ नई चीज़ें आएगी। तो इस तरीके का चेंज हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। और तो काफ़ी सारे हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जहाँ पर हमें जो दिखाई देता है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए काम करते हैं। हमारा कोई एस्टेब्लिश मॉडल नहीं है, लेकिन अलग अलग गाँवों में अलग अलग तौर तरीके चाहिए होते हैं। तो हम लोगों ने पैड बैंक शुरू किया, इंसिनेटर शुरू किया, रियूजेबल पैड्स इस्तेमाल करने का किया, पीरियड्स एंड साइंस सेशंस हम लोगों ने लिया ताकि साइंस के प्रति भी जागरूकता फैले। एक पैड एक पेड़ अभियान हम लोगों ने शुरू किया ताकि सुपरस्टिशंस जो जुड़े हुए उसको भी ख़त्म करें, साइंटिफिक टेम्परामेंट्स डेवलप हो। तो काफ़ी सारे हम लोग एग्जाम्पल्स करते रहते हैं। लड़कियां खेल के मैदान पर आए, उसके लिए मिक्स जेंडर क्रिकेट हम लोगों ने शुरू किया। तो काफ़ी सारे तो हम लोग कुछ क्योंकि अभी बताया सर ने कि पिक्चर से ज़्यादा समझ में आता है, तो हम लोगों ने इतने सारे अभियान, गिफ्ट सैनिटरी पैड फॉर रूरल गर्ल्स, पैड बैंक, पैड प्रोजेक्ट, पैड ह्यूमन, क्योंकि लड़के भी हमारे काफ़ी वॉलंटियर्स हैं। जैसे मैं एक लड़का हूँ, लड़कियाँ क्या है कि हमारे गाँवों में उतना ट्रेवल्स करके उतना काम करना थोड़ा मुश्किल है रिसोर्सेज के अभाव में। तो बच्चियाँ अपने गाँवों में अब एजुकेट करती हैं, और हमारे जैसे लड़के वॉलंटियर्स हैं वो दूर दूर ट्रैवल करते हैं। पीरियड एंड साइंस, क्योंकि बच्चियाँ पढ़ाई तो दूर हमारे इलाके में, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे 10th के बाद साइंस पढ़ें ताकि वो आगे चेंज मेकर्स हो। एक पैड एक पेड़ और नन्हे रचनाकार, मतलब वो अपने थॉट प्रोसेसेस को नोट भी करना सीखे। तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। इस तरीके से रंगोली बनाते हैं। देखिए बच्ची एक दिख रही है, वो इस तरीके से हमारे सेशंस कंडक्ट कराते हैं अपने अपने गाँवों में। मतलब कि हर चीज़, खेल का मैदान, लाइब्रेरी, स्कूल्स, गांव, मतलब हर जगह, जंगल, पहाड़, इस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ वहाँ पर काम हो पाए, और हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सभी लोग उसको बात करने की कोशिश करें। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में हम लोगों ने जो किया है, कोशिश कर रहे हैं, जो किया है उसे 1000 गुना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन किया जा रहा है। और जैसे एक पैड एक पेड़ अभियान के बारे में हम लोगों ने कहा, क्योंकि हम लोग केवल बात करेंगे, अब खुद बात करेंगे तो उतना चेंज नहीं आएगा, लोगों को इंगेज करेंगे तो ज़्यादा आएगा। तो हम लोगों ने एक पैड एक पेड़ अभियान इतना हाईली मतलब लोगों को पसंद आया। लड़कियों को सैनिटरी पैड हम लोग देते हैं, कहते हैं जाइए आप पेड़ लगाइए, क्योंकि डिस्पोजेबल पैड से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचता है, और पेड़ लगाइए, पेड़ लगा के देखिए, क्योंकि लोग बोलते हैं कि पेड़ लगाने से मर जाता है। अब हमारे इलाके में हज़ारों पेड़ हैं जिस पर फल आ रहे हैं, तो वो काफ़ी कमाल का वो है। तो काफ़ी सारे इस तरीके से हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अर्थ है जो, अगर उसको हम लोग ग्रीन रखेंगे तभी हमारा सर्वाइवल्स है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक सबसे अच्छी बात ये रही कि मेरा नाम तरुण है, और जो हम लोग बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं, लड़कियों को तरुणी, तो उसकी डॉक्यूमेंट्री आप लोग NCERT के चैनल पर भी देख सकते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने अवार्ड दिया था कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा एजुकेशनल कंटेंट है, तो अभी वेबसाइट पर भी वहाँ पर आ गया है लास्ट ईयर। तो ये बड़ा अचीवमेंट है। सबसे बड़ा अचीवमेंट तो है कि जो बच्चे और लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन इस तरह के यहाँ पर हम लोग झारखंड से आकर के दिल्ली में बात कर रहे हैं, क्योंकि 7 लाख से ज़्यादा गांव हैं हमारे देश में। गांवों की तरफ अगर ओरिजिनली काम हो तभी हम लोग एक्चुअल डेवलपमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो वही कोशिश है, और अल्टीमेट कोशिश है कि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आए, और हम सभी लोग बच्चों का के लाइफ को सेफ बनाने के लिए हम लोग काम करें। थैंक यू। Yeah. Thank you so much, Tarunji. Okay, I'll invite Sandy ji to just speak a few words for your work, and we'll then forward.
तरुण जी का सुन के बहुत मज़ा आ रहा था और मैं मैम को बोल रहा था कि मेरा भी 2 मिनट दे दो उनको। इतना अच्छा काम करते हैं, मैं देखता रहता हूँ, फॉलो करता हूँ कई सालों से उनको। ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन एक संस्था है जो मैं चलाता हूँ और पीरियड्स के ऊपर काम करना मेरा जो इंस्पिरेशन शुरू हुआ मेरी खुद की फैमिली से और गांव से शुरू हुआ, पर सोचा नहीं था कि काम करूँगा। बिकॉज ऑफ मैनी इंसिडेंट्स मेरे में वो करेज आया कि मैं काम करने लगा उस पर। और टाइमली हमने वॉल्टियर ड्रिवन इनिशिएटिव शुरू करे थे, बट बाद में गवर्नमेंट सपोर्ट, CSR सपोर्ट के साथ हम लोगों ने फिर उसको कैपेसिटी बिल्डिंग और एक्सपेंड किया आउट ऑफ हरियाणा। PPT कोई है क्या? ये अमरलता मैम करके। हाँ, वैसे भी PPT जस्ट दिखाने के लिए, नोट जिस menstrual specific. Majorly we are working in the domain of climate change, gender and health. In health, majorly menstrual health and mental health. And we have one of our flagship program, that is Periods of Pride, that we are running in the different states including Himachal, Punjab, Haryana, J&K. We are working with a 360-degree approach where with the help of education, awareness, along with advocacy and action, we are impacting the girls and adolescents. अगर मैं 360 डिग्री अप्रोच की बात करूं, मेजरली हमने अवेयरनेस से स्टार्ट की थी इनिशियली फेज में, दैन टाइमली वी गोट मीडिया अटेंशन, और हमने उसमें था कि बाकी जो NGOs करते हैं जाके वो अपना सेशन लेते हैं या जाके कुछ बांटते हैं, तो वो लोग प्रॉब्लम नहीं समझते थे कि डिफरेंट ज्योग्राफीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलेटेड टू पीरियड्स। बिकॉज जो हमने देखा, किसी स्टेट में मेंस्ट्रुअल पैड नहीं मिल रहे थे, किसी स्टेट में गवर्नमेंट इटसेल्फ गिविंग सैनिटरी पैड्स। वो सारी चीज़ें हमने क्या किया, पहले हमने डिफरेंट स्टेट्स में स्कूल्स में सर्वे किया एंड रिस्पॉन्सेज कलेक्ट किए फ्रॉम गर्ल्स एंड इवन बॉयज़ and even from teachers. On the basis of those surveys, हमने एक research based back data बनाया, even काफ़ी सारे कई media houses ने वो छापा भी है। That was even part of our advocacy work, और उस के बेसिस पे वी क्यूरेटेड द मॉड्यूल्स, और उसके बेसिस पे वी क्यूरेटेड डिफरेंट थिंग्स। बिकॉज काफ़ी जगह सैनिटरी पैड्स मिल रहा था, तो पैड देना इज़ नॉट सॉल्यूशन। वहाँ पे पैड देना कोई सॉल्यूशन नहीं था। वहाँ पे पैड तो मिल रहा था, बट उनको इवन टीचर वर नॉट फैमिलियर अबाउट द मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट। तो वो शाय और वो टैबू और स्टिग्माज हमने देखे इवन टीचर्स के साथ, एंड दैट इज़ वन चैलेंज बिकॉज उनको पैड मिल रहा था। दूसरा वहाँ पे चैलेंज था डंपिंग। वहाँ पे पैड्स तो दे रही थी गवर्नमेंट, बट वो डंप कहाँ पे करें, कैसे करें। तो MC की गाड़ी नहीं आती थी, स्कूल के वॉशरूम में ही पड़े हैं पैड, या ऑन ग्राउंड ओपन एरियाज़ में ही पड़े हैं, गांव के एरियाज़ में खेतों में ही पड़े हैं। दैट वाज अनदर पार्ट ऑफ चैलेंज। तो उन सब चैलेंजेस के बेसिस पे वी क्यूरेटेड अनदर अप्रोच, विल started promoting cloth pads. That will be a better alternate for the remote villages, because remote में MC नहीं जाती है, MC की गाड़ी कचरा नहीं उठाती है, तो कोई यूज़ करके फेंकता है तो वो लैंडफिल्स में जाता है या बाकी जगह जाता है या हमारी वाटर बॉडीज़ में जाता है, खेतों में जाता है, तो वो एनवायरनमेंट को हार्म करता है। दैट इज़ वन पार्ट। और जो हमारे स्ट्रे एनिमल्स हैं, स्पेसिफिकली विल गो इन विलेजेस इन इंडिया, विल सी काउज, नील गायेस एंड डॉग्स एंड ऑल, वो सब, तो उन सब के लिए भी वो हार्मफुल था जो हमने देखा क्रिटिकल लेंसेज से। ये सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से हमने शुरू किया इको फ्रेंडली को या रियूजेबल क्लॉथ पैड को प्रमोट करना, एंड वी पार्टनर्ड विद मैनी ब्रांड्स। एंड apart from that, recently Shruti from Narikasi joined us as one of trustee, and now we started also promoting periods panties and all. ये जर्नी रही हमारी थोड़ी सी, और समय ज़्यादा नहीं, ये टीम मेंबर्स कुछ आप लोगों को दिख भी रहे होंगे। मैं हूँ और इम्फाल से हैं कुछ लोग, ये कुछ IS हीरालाल पटेल जी हैं, ही इज़ बैकिंग अस। अलग अलग लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ मिलके काम करते हैं।
और हम जो काम कर रहे हैं वो पूरा प्रॉपरली रिसर्च बैक्ड है। कुछ भी हम ऐसा नहीं कि हम यूजुअली जाएं और हम कुछ भी उनको बताएं, क्योंकि हर डेमोग्राफी का अलग प्रॉब्लम था जो हमने इनिशियल फेज में देखा। एंड इनिशियली हमने, एज आई टोल्ड, कि आई स्टार्टेड विद वॉलंटियर ड्रिवन ओनली, देन लेटर ऑन वंस वी स्टार्टेड गेटिंग फंड्स, देन वी मूव टू द डिफरेंट अप्रोच। वी ऑल्सो एडिड द एक्शन पार्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो। So I think we are running out of time, so that's it. Thank you. Thank you so much, Sandy. I have one question for each of you, and after that, I can just open the floor for question answers from the audience as well. Mr. Neeraj, मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी in your session and your introduction was you have a unique connect between mental wellness and menstruation. And especially with the young girls, adolescent girls, because वो puberty से निकलते हुए वैसे ही hormones football खेल रहे हैं अंदर. So why did you do that, and how is it effective, and how are you doing it? That's a very beautiful question. You know, there's a connect between Nisha and me as well. We both are from Art of Living, the Art of Living. So there's a reason she has yoga in her session and I have yoga and meditation in my sessions. So I certainly believe, even if we have given them information, हमने उनको सब कुछ बता दिया, ये करो वो करो, if they don't have the courage to implement it, if they don't have the mental capacity to do it, they won't be able to do it. So इसलिए हम उनको पहले तो meditation करवाते हैं. Go for meditation. Their mind gets settled, and once it's settled, it can see what's right for me and what's not right for me. So ये meditation session and emotional well-being session are very, very essential nowadays. I think it should be part of each and every session, and So that you becomes do it before the session starts, or you complete it after with in the between. session? It's a package. It's a 90-minute session. Okay, It's a 90-minute okay. session. We start with some ice-breaking activity. Right. We sing, we dance, Wow. we do everything. Yeah. That's the reason it's called Happiness Express. You have that blueprint with you, which we can access. Yeah, surely. I can share whatever I do. I show my photographs, and through my photograph, I speak about what we do and what should be done. More than what we do, what should be done? What are the problem existing? What are the issues existing in this? And why these things were, when these myths started, there was some reason these myths were there. There were some reasons. Plants को हाथ नहीं लगाना, kitchen में नहीं जाना, अकेले रहना है. Reasons थे. Now there is no scientific reason behind it. So हम लोगों को ये बोलते हैं कि ये अच्छा ठीक है. Now there is no reason to believe in these things. Now let's change the world. छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी. और जब उनमें mental health better होती है तो वो इस पे implement कर पाते हैं. True. Thank you. Very nice. Thank you. थैंक यू सो मच. तरुण जी, आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने कम्युनिटी लेड MHM मॉडल्स बहुत अच्छे से ग्रास रूट्स रिमोट विलेजेस में आपने किए हैं, तो कौन से ऐसे इंटरवेंशन आपको, बहुत सारे आपने जो बताए हैं, काफ़ी सारे छोटे छोटे नाम दिए गए हैं लेकिन बड़े बड़े इम्पैक्ट है उसके, तो उसमें से आपको कौन सा लगता है कि जो इंटरवेंशन ऐसा हो जो इम्पैक्टफुल हो और स्केलेबल हो सकता है एट दी नेशनल लेवल? क्योंकि हमारा जो भी अभियान है वो लर्निंग बेस्ड है, लर्निंग और इम्प्रोवाइजेशन. हम लोगों ने पैड बैंक शुरू करके कोशिश की थी कि बच्चों को बताया जाए और वो चेंज लाए अपने गांव में. तो धीरे धीरे चेंज होता जा गया. फिर धीरे धीरे हम लोगों ने इन्वायरमेंट कंसर्न को भी समझा, फिर रीयूजेबल पैड तक पहुंचा, या डिस्पोजेबल पैड को हम लोग मना नहीं कर सकते, तो फिर एक पैड एक पेड़ को हम लोगों ने शुरू किया. तो एक पैड एक पेड़ हमारा इनिशिएटिव है. वो काफ़ी यूनिवर्सल कैंपेन है. जैसे MHM पर बात करना, MHM पे एजुकेट करना वर्ल्ड के किसी भी कोने में उतना ही इम्पोर्टेंट है. उसी तरीके से एक पैड एक पेड़ भी ज़रूरी है. लड़कियां हैं हर जगह, महिलाएं हैं हर जगह, तो मेंस्ट्रुअल के बारे में बात करना है. और इन्वायरमेंट है तो केवल इंसान ही नहीं, जितनी भी स्पीसीज हैं तो उनके एग्जिस्टेंस की बात है. तो एक पैड एक पेड़ कैंपेन स्केलेबल हो सकता है. स्केलेबल है. और इतना ही नहीं है, 12-15 ऑर्गेनाइजेशंस इसको अडॉप्ट भी किए हैं. कर रहे हैं. और काफी सारे ट्री हमारे यहाँ, वेरी नाइस. काफी सारे स्कूल्स ग्रीन हो चुके हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू. शादी में भी होता है. हाँ जी. वेरी गुड, वेरी गुड. सो एक पेड़ एक पैड, एक पैड. जैसे क्या होता है कि ऐसे हम लोगों का अचीवमेंट यही माना जाता है कि मैं जिस गांव में गया नहीं वहां से भी फोन आया, आ जाओ भैया वर्कशॉप कराओ. तो उसी तरीके से अब लड़कों को कैसे जोड़ा जाए, हमेशा चैलेंजिंग रहता है. तो 2 इनिशिएटिव हमारे उस तरीके से शुरू है.
क्योंकि रक्तदान करना हमेशा जरूरी होता है। हाँ जी। तो जितने रक्तदान कैंपेन्स हैं, तो सैनिटरी पैड एक अब शायद सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन सभी लोगों को पसंद आ गया है, समझ में आ गया है, सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करने लगे हैं। लेकिन सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करना ही वो नहीं है। तो रक्तदान में रक्त देते हैं भाई, जान बचाने के लिए जरूरी है। तो हम लोग वहाँ पे भी ज्यादातर मेल ही हैं जो रक्तदान करते हैं, लड़कियां हीमोग्लोबिन के कारण नहीं कर पाती। तो हम लोग जितने रक्तदान शिविर होते हैं उसमें हम लोग पैड भी देते हैं, क्योंकि आप अपने जाकर के फीमेल पार्टनर्स को पैड दीजिए और पेड़ लगाइए इसके आगे। वेरी गुड। तो ऐसे हम लोग 25-30 रक्तदान शिविर में ऐसा कर चुके हैं। तो Very हर nice. जगह हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बदल करके। Very nice, very nice. Sandy, I would like to ask you one thing which I really want to know is कि आप जो youth clubs और peer education वगैरह जो it plays a very big role in scaling any impact. Because peer से ज़्यादा सीखते हैं हम लोग। टीचर आके बोल जाएंगे, लेकिन अगर आपका दोस्त बोल रहा है then you will seriously take it like very sportingly. तो how are you using those programs in your domain? मेरे डोमेन में सिर्फ एमएचएम ही नहीं, इको क्लब्स के साथ भी हम लोग जुड़े रहते हैं, बिकॉज एज वी आर वर्किंग इनटू क्लाइमेट डोमेन ऑल्सो। और अच्छी बात ये रहती है कि बच्चों में जब ऐसे क्लब्स में, स्कूल्स में हम काम करते हैं, पीर टू पीर इंफॉर्मेशन ज़्यादा जल्दी पहुंचता है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है, उनको याद भी अच्छे से रहता है। और दोस्तों में जो होता है कि हाँ, पीर टू पीर इंफॉर्मेशन का हम एक वे ये भी देखते हैं सबसे आसान कि चलो बंक करके मूवी देखने जाना है, तो मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है एक वही क्लासमेट अपने दूसरे क्लासमेट को, अपने कलीग को। तो ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमें लगता है। इसमें जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और दूसरा स्पेसिफिकली जब हमने एनवायरमेंटल प्रोस्पेक्टिव की बात की, क्योंकि ये सिर्फ बायोलॉजिकल, हम सोचते हैं कि सिर्फ एक बायोलॉजिकल चीज़ है और उससे कोप अप करने के लिए वी आर यूजिंग पैड्स, बट हम कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल जो आज के टाइम पे सबसे बड़ा एनवायरमेंट कंसर्न बनता जा रहा है और उसको हम नेगलेक्ट करते हैं, जो कि अगर हम सैनिटरी पैड यूज़ करके खेतों में फेंकते हैं तो इंसेक्ट्स जो आते हैं, बाकी जो चीज़ें आती हैं जिससे पॉलिनेशन एनकरेज होता है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, बीइंग कमिंग फ्रॉम फार्मिंग कम्युनिटी। और वो सारी चीज़ें मैंने देखी प्रैक्टिकली। तो कहीं ना कहीं वो हर चीज़ पे, सिर्फ पॉलिनेशन ही नहीं, उसके अलावा स्ट्रे एनिमल्स हैं, बाकी सब चीज़ें हैं। हम रिवर्स में अगर जा रहा है, वो लैंडफिल में जा रहा है, तो वो वाटर के ऊपर वाटर कंटेमिनेशन का इशू भी बन रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम जब पीर टू पीर और स्मॉल एज ग्रुप में बच्चों में जाते हैं, स्पेसिफिकली स्कूल्स में, तो वो लोग सुनते भी ज़्यादा अच्छे से हैं और समझते भी ज़्यादा अच्छे से हैं। इवन टाइम लगता है उनके लिए, बट कोई, अगर मैं कैटेगरी की बात करूं, इफ़ विल गो इन कॉलेज, तो वहाँ पे बच्चे उतना ध्यान से नहीं सुनते हैं बिकॉज अडल्ट एज में होते हैं। और स्कूल में जब मैं बात करता हूँ, यंग एज में होते हैं, एडोलसेंट्स में जब हम बात करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से सुनते भी हैं और एक्ट भी करते हैं उनके ऊपर। सो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं इसकी, क्योंकि इसमें टेंजिबल इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। सिर्फ वहाँ हम जाकर पैड या मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर ही बात नहीं करते, बिकॉज हम लोगों ने जो इसका इंटरसेक्शन किया है वो सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट के साथ जोड़कर किया है। क्योंकि जब संस्था में हमने शुरू भी किया था, तो हमारा प्राइम जो गोल था वो सिर्फ एक इशू को एड्रेस करना नहीं था, बिकॉज जो इश्यूज़ मैं देख रहा था अपने गांव में या अपनी लोकेलिटी में, तो मेरा जो प्राइम कंसर्न था वो सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट था। बट उसी को इंटरसेक्शन करके फिर हम क्लॉथ पैड और बाकी ऐसी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना शुरू किया। उसका ब्रॉडर वे यही था कि हम लोग कैसे प्रिवेंट करें जो इश्यूज़ हो रहे थे एग्रीकल्चर लैंड में या रिवर्स में या आसपास के एरियाज़ में। So that's it. थैंक यू सैंडी। निशा जी, आपसे एक सवाल था कि बिकॉज आपने जब शुरुआत की, आपने कहा बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो ऐसा कोई एक या दो ऐसे किस्से हों कि जहाँ पे आपको चैलेंज बहुत बड़ा लगा और इनोवेटिवली आपने उसको कैसे एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज एन इंडिविजुअल उसको मीट आउट किया हो, जो ग्रास रूट्स में वहाँ पे ऐसे स्टेट्स में ज़्यादा जल्दी देखने मिलते हैं चैलेंजेस ऐसे, तो क्या चैलेंजेस थे और हाउ डिड यू मीट इट? So this is my journey now. I will share it. Coming back to COVID-19,
वो एक ऐसा समय था जो लोगों के पास जो भी था लोग डोनेट कर रहे थे, राइट? तो उस टाइम पे हमने सैनिटरी पैड डोनेशन ड्राइव थी, हमारी टीम गई हुई थी एक बस्ती में जहाँ की लोगों ने पैड लेने से मना कर दिया। एंड दिस इंसिडेंट रियली इम्पैक्टेड मी कि वाई दिस, पैड ही तो नेसेसरी चीज़ें हैं, इनको क्यों ये नहीं समझ आ रहा है। देन my team planned one workshop that is 45 मिनट की वर्कशॉप हमने प्लान किया एंड वहीं से हमने मासिक सखी कैंपेन शुरू किया और अभी तक हम लोग 500 से ज़्यादा वर्कशॉप ले चुके हैं, 20,000 गर्ल्स को रीच आउट किया है। और ये वर्कशॉप ऐसी नहीं है, हमने जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग योगा सेशन वगैरह भी सब कुछ ऐड करते हैं, तो यही थी मेरी मतलब मोस्ट हिटेड इंसिडेंट कि आपको क्या ऐसा ट्रिगर कर गया। तो यही था कि वुमेन ने सैनिटरी पैड लेने से मना कर दिया। सो आई वॉज हियर नाउ। नाइस, आपको कोई चैलेंज करता है तो बहुत सीरियसली ले लेते हैं। या No, that's really nice, and we are really happy to listen to all of them. But I also want the audience to engage. If at all any one of you have any questions for any of our speakers, please. Yes, we have somebody at the back over there. Yes, we can give the mic to them. Yeah, we can hear you also. I can volunteer. कहाँ देना है mic? Thank you very much. Thank you so very much. Am I audible? Oh, thank you so very much. And thanks for sharing all your stories. It's so inspirational. Just wanted to ask you. Wanted to ask you that have you faced challenges talking to children who are premenstrual age and children who are going through the periods, and how do you tackle that? You have any specific question to anyone specific? No, I mean all of you have got experience, so whoever wants to tackle, yeah. क्योंकि हम लोग स्कूल्स में या गाँव में जब सेशंस लेते हैं तो हम लोग नॉर्मली 5 क्लास से 12 क्लास तक के बच्चों के साथ हो लेते हैं। नॉर्मली 7-8 क्लास में बच्चियों के पीरियड शुरू होते हैं, समझते समझते 10th 11 हो जाता है ना, अगर हम लोग उनको अटेंड ना करें तो। काफ़ी सारे किसी के माँ बताते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, तो छोटी बच्चियों को तो नहीं पता होता है, लेकिन हम जब हमारे सेशंस होते हैं वहाँ बैठती हैं तो उनको काफ़ी अंडरस्टैंड। जैसे एक मेरे फील्ड का एक बताएंगे, एक घर में 5 लड़कियाँ थी, सबसे बड़ी 18 साल की और सबसे छोटी 6 साल की। अब उसमें से 5 बच्चियाँ 6 साल वाली अब हो गई है 14 साल की, जब से हम लोग उसको कनेक्ट है। अब बड़ी वाली बच्ची उस समय हम लोगों का सपोर्ट करती थी, अभी सबसे छोटी वाली बच्ची सपोर्ट कर रही है, पूरे गाँव को वो सब चीज़ें कर रही हैं। तो एक मिक्स्ड एज के ग्रुप के साथ हम लोग को सेशन कराना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जो बता करके जाएंगे बच्चे उस समय नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके बाद बोलेंगे। जो भी सवाल आएंगे हम लोग के पास आएंगे, हम लोग उसको एड्रेस करेंगे। तो ये सबसे बेहतर है कि मिक्स एज के बच्चों के साथ काम किया जाए। Very nice. Anyone wants to add to that? I also personally feel that addressing, menstrual age being deteriorating over the period, I have had queries from mothers saying that my 9-year-old and 8-year-old have started with periods. It is initially we used to, as he said, we used to tackle and talk or interact with only girls above certain age or certain class in the school, which now we have decreased that to, like, say, from 3rd standard onwards, you should be having that interaction with the girls. So in fact, I think it is utmost important to address this issue with the mothers and the parents both. So if you involve the parents, it becomes way easier for the child to go through that puberty phase, which is early on at her in her age, so in her life. Yeah. So that is one. Anyone else? Yes. First him. Yes, please. Hanji. There is the mic there. Yeah. Yeah, he wants to come here. He can have the mic. मैं क्विकली एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मुझे लगता है अगर आप मेंस्ट्रुअल एक्टिविस्ट हैं
तो प्लीज़ बच्चों को बदलना बहुत आसान है, पेरेंट्स को बदलना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो प्लीज़ आप जितना जल्दी कोशिश कर सकें बच्चों को बदलिए। अगर हमने वहाँ बदलाव कर दिया तो नेक्स्ट जनरेशन एटलीस्ट हमें चेंज मिलेगी। तो प्लीज़। जी, सबको नमस्ते। मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं पेशे से एक टीचर हूँ और पढ़ाता हूँ। और मेरी जो फाउंडेशन है घुमक्कड़ी फाउंडेशन, मुख्य तो ये है कि हम लोग पढ़ाने पढ़ने का काम करते हैं, लेकिन पढ़ने पढ़ाने के दौरान कई ऐसी चीज़ें हो जाती है जो याद करते वक्त भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि किसी से मैंने शेयर क्यों नहीं किया। तो मैं आपने सुना होगा कठपुतली कॉलोनी, वहाँ पर एक बच्ची थी जो चल फिर नहीं सकती थी, विकलांगता के साथ, मतलब वो एक कमरे में ही रहती थी। तो उसकी मम्मी ने कहा कि आप पढ़ाने आ जाइए। तो मैं उनकी झुग्गी में गया और पढ़ाना शुरू किया। तो उसकी मम्मी नहीं है घर पर, पापा रिक्शा चलाते हैं और मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाते पढ़ाते ही उसके विशेष दिन शुरू हो गए। अब वो बता भी नहीं पा रही है और एकदम से काँपने लगी। ऐसे लगता है कि ट्रॉमा होता है ना एकदम से, कि क्या हो रहा है उसके साथ, उसको कुछ पता ही नहीं। अब ऐसे कंडीशन में मेरी भी इतनी समझ नहीं थी इस विषय को लेकर, लेकिन उस बच्ची की हालत ऐसी हो गई कि जब भी उसको आगे विशेष दिन आए वो चिल्लाने लगती। उसको पता नहीं, बताने वाला कोई नहीं था। फिर धीरे धीरे एक NGO की दीदी थी, उनसे बात करके उनसे मिलाया हमने और उससे धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई। तो मेरा प्रश्न सभी लोगों से है कि एक विकलांगता के साथ एक विकलांग लड़की, उसको वो जो समस्याएं झेल रही है या उसको कुछ पता ही नहीं है, तो उसके लिए आप सब क्या कर रहे हैं या ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है? क्योंकि मेरे विषय में नहीं है ये, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक विकलांग लड़की कैसे उसको सॉर्ट आउट करेगी या उनकी फैमिली, प्लीज़। You want to answer? ये रियल में बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है, पीरियड विद डिसेबिलिटी को लेके। तो इसको लेके मैं कॉमिक बुक लेके आया हूँ जिसके अंदर हमने डिसेबिलिटी के साथ PCOD और PCS को भी कन्वर्ट किया है। तो सारी चीज़ों को हम कैसे बच्चों के फॉर्म में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, वो जल्दी आप एक कॉमिक फॉर्म में देख सकते हो, जिसमें बच्चे लाइब्रेरीज़ के अंदर या अपने घर में भी कॉमिक्स को पढ़ेंगी। उन्हें पता चलेगा क्या चीज़ें हमें पीरियड्स के अंदर या डिसेबिलिटीज़ के अंदर करनी चाहिए, क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो सारी चीज़ें आप उसके अंदर कवर कर सकते हो। आई थिंक देयर इज अ स्पेशल सेशन फॉर दिस, जो आप पूछ रहे हैं उसके लिए एक स्पेशल सेशन है, नेक्स्ट ब्रेकअवे सेशन, उसमें आप इस बारे में बात कर सकते हैं। बाकी मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, आप हो सकता है शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की बात करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानसिक रूप से विकलांग हैं, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। तो हमें सबको मिलकर इस मानसिक रूप की विकलांगता पे काम करना है। I think I should conclude. We can take the questions of the panel because we are running short of time. So I think we had an amazing panel of speakers today, and we've learned that how emotional well-being and open conversation is very, very crucial at the school and community level. We've also learned how community-led ownership, gives that positive impact in the community, in the lives of the young girls. And we've also learned how youth-driven sustainability and including boys and men in the picture, and also how small challenges can be innovatively met. So we had an amazing session. Thank you all the speakers. It was my pleasure to host this panel. So thank you Gramalaya for having us all and have an open house discussion around this topic. Thank you. Thank you, Ms. Geeta. Thank you, all the panelists, for such a powerful discussion and sharing their field experiences. Can we have a round of applause for these people for sharing so deeply their experiences, what they went through? Because we are running short of time, I had a few questions with the audience as well, but I'm going to cut the chase down. May I please welcome the Executive Director of Gramalaya, Mr. Ingrilvan, to please prestige our panelist with mementos. Yeah. Geeta ma'am, can you please... Sir, you as well. तालियां नहीं रुकनी चाहिए. Please put your hands together for all our panelists. Thank you, Geeta ma'am, for moderating this panel so well, for sharing the insights.
Can we have a तालियां नहीं रुकनी चाहिए यार she thank you so much. Geeta ma'am, I would request you to please give mementos to our other panelists. Mr. Dheeraj, please come. Thank you for sharing your experience. सबसे अच्छी बात मुझे इनकी लगी कि इन्होंने बोला कि मेल काउंटर पार्ट्स को भी उतना स्ट्रांगली डिस्कस करना चाहिए एंड the pictures speak louder than words, and it's true. Thank you so much, sir, for your contribution towards the MHM sector. Thank you, sir. Thank you. I would like to request Ms. Nisha to please step in. The energy Ms. Nisha brought to this room, it was amazing. We need such energized, such enthusiastic people in our MHM sector. Thank you, Nisha, for your insightful and sharing all your experiences with us. Sir. Amazing. I would like to request Mrs. Sandy to please step. Thank you, sir, for sharing your experience. Green Pencil Foundation के साथ आपने कितने बेहतरीन काम किए हैं. Thank you so much for being here. Can we have a big round of applause for them, please? I would request Mr. Tarun, आप प्लीज़ आइए. और झारखंड में मेरा ये फर्स्ट टाइम मैंने जाना कि झारखंड में भी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा रही है. हमारे पैडमैन के लिए एक तालियां बजा दीजिए प्लीज़. कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर तरुण, द पैडमैन ऑफ इंडिया ऑफ झारखंड, doing incredible work in the MHM sector. We will be having a group photo inside after this. Yeah, please stay back. Awesome. There's a group photo on the main hall. Please उस photo में जुड़िएगा. We want everybody, all the bright faces to be there. All. नहीं sir, आप लीजिए. We all can, yeah. And sir, you also please be with us. Yeah. नहीं sir. What an amazing panel. Sir, wait,